Welcome, dear students. Today we will study Do Something Brother, written by M. Gopal Krishnan Adiga. This is the poem which is prescribed in BA Part 3rd year English Literature, paper first, the series of Indian poets. In this poem, Do Something Brother, Gopal Krishnan Adiga is very much concerned about with the people who are sitting idle. Though it is a great irony on human being. So before to start this poem, do something, brother. I would like to give a brief information about M. Gopal Krishna Adiga. M. Gopal Krishna Adiga was born in Mugeri, Kundanpur of SK district, Karnataka. He was a Kannada poet, scholar, novelist, and essayist. Adiga translated the works of Ibsen, Walt Whitman into Kannada. He included the individualistic experiences, aspirations, and ideologies of Indian middle class in his modernism. His writings reflect humanity. He wrote a number of books and received several awards. मैंने जैसे आपको कहा कि गोपाल कृष्ण का जन्म एम गोपाल कृष्ण अडिगा का जन्म कर्नाटका के एस के ज़िले के नियर कुंडलपुर के एक मुगेरी गांव में हुआ। कन्नड़ भाषा के बहुत ही विद्वान कवि, उपन्यासकार और निबंधकारों में से एक हैं। अडिगा ने वॉल्ट विटमैन, इब्सन आदि की रचनाओं का कन्नड़ में अनुवाद किया। उन्होंने आधुनिकतावाद में भारत के मध्यम वर्ग के लोगों के अनुभवों को, आकांक्षाओं को, विचारों का समावेश किया है। उनकी रचनाओं में मानवता झलकती है और उन्होंने काफ़ी संख्या में पुस्तकों को लिखा है। द प्रेजेंट पोएम डू समथिंग ब्रदर इज a wonderful poem that is a scant satire on human being, those who are only getting and spending the resources available on the earth. The poet ridicules the tendency of the modern man to be up and doing without any concern about the consequences of his thoughtless action. Adiga point out the opposition between opposition and to say uh, between thought and action. The poet exhorts man to do all kind of destructive activities. He incites to do some violent action, to crush, to nip, to pull down, to break, to burn whatever is conveniently available to him. He asks his brother or his companion or his colleagues to do something. He must not sit. He urges his friends, his nearest and dearest, that they must not sit without work and pass their time in idleness. The poet's view is that movement is life and dullness is death. जो अडिगा है, गोपाल कृष्ण अडिगा, बहुत क्लियर तरीके से उपहास करते हैं मानवीय प्रवृत्ति का। वो एक जो रिडिक्यूल करते हैं ह्यूमन बीइंग की एक टेंडेंसी का, कि अपनी जो विचारहीन क्रिया के परिणामों के बारे में चिंता किए, ये उसका जो कार्य करने का जो तरीका है, उसकी जो कार्यशीलता है, उसके ऊपर ये बहुत ही सटीक उपहास है। अडीगा विचार और कार्य में एक कंट्रोवर्सी बताते हैं। कवि पुरुष को सब प्रकार के विनाशकारी कार्यों को करने के लिए वो प्रेरित करता है। वह मनुष्य को हिंसात्मक और उसे
विध्वंसक कार्यों के लिए प्रेरित करता है। जो कुछ सुविधाएं उसको बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, उनको कुचलने के लिए, तोड़ने के लिए, हटाने के लिए, खींच कर तोड़ने के लिए, तोड़ना, जलाने के लिए, सब कुछ बर्बाद करने के लिए वो अर्ज करता है। वो अपने भाइयों को, अपने साथियों को भी ये कुछ करने के लिए कहता है। उसको बिना काम के बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि आलस्य में मनुष्य को समय नहीं बिताना चाहिए। उसका विचार है कि क्रिया जीवन है, और जो मृत्यु है, जो कहा जाए कि सुस्ती जो है, इसलिए मनुष्य को किसी भी तरीके से शांत नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि एक्शन इज लाइफ। ऑन द अदर हैंड, idleness or dullness is death. The poet urges man to bring about the complete disaster at fast speed. बहुत रिक्वेस्ट करते हैं अडिगा कि जितना संभव हो सब कुछ बर्बाद कर देना चाहिए। ही हैज़ टू डू और डाई। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली दो वे है, आइदर डू और डाई। वट इज नीड फॉर हिम इज क्विक एक्शन। ही हैज़ टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द मदर अर्थ। जो कुछ पृथ्वी के अंदर है उसको जितना संभव हो, एज सुन एज पॉसिबल उसको स्नैच कर लेना चाहिए, उसको खींच लेना चाहिए, उसका दोहन कर लेना चाहिए। आफ्टर ऑल he is a man, and hence he should do like a man, because he has some sort of masculine power in him, and he should have to show of that masculinity. He is, or he incites man to pull out all the water from the well of life accordingly, because the poet says that idle men are burden on the land, on the earth. The poet wants man to do something, lighten the burden of the earth, Mother Earth. He declares that all this is right, naturally and necessary. हमें सब कुछ वो जो अडिगा हैं तीव्र गति से विनाश के लिए सबको विनाश कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। बोलते हैं कि यू हैव ओनली टू ऑप्शन, डू और डाई, करो और मरो का पालन करना है आपको। जो कुछ अवेलेबल है धरती माता में, जितना कुछ है उस सबको सींच लेना। आखिरकार पुरुष है, पुरुषत्व को आपको उसको अपने पुरुषत्व के अकॉर्डिंग आपको यू हैव टू डू समथिंग। आखिर पुरुष है तो पुरुष के रूप में उसको कार्य करना चाहिए। पुरुष के जीवन मतलब यानी कि पुरुष को जीवन के कुएं यानी कि जो स्रोत हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उसका सारा वाटर को खींचने के लिए प्रेरित करता है। कवि के अनुसार सुस्त जो पुरुष होता है वो धरती माता पर बोझ है, भार है, और कवि पुरुष से चाहता है कि वह धरती का बोझ को हल्का करने के लिए कुछ ऐसा करे। और वो ये घोषणा करता है कि जो कुछ वह कर रहा है वो एवरीथिंग इज करेक्ट, राइट है, और प्राकृतिक रूप से ये आवश्यक भी है और उसको करना ही चाहिए। द प्रेजेंट पोइम डू समथिंग ब्रदर में जो सेंट्रल आइडिया की अगर हम डिस्कशन करें तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोइम डू समथिंग इज do something brother is that idle men are burden on the land, so we have to do or die, मतलब we have to do something। डू समथिंग में अगर हम इसका एक कहें कि सेंट्रल थीम क्या है, तो अगर हम इसकी थीम की चर्चा करेंगे तो थीम में जो है पोइट बहुत क्लियर बोलते हैं कि द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम टू डू समथिंग ब्रदर इज that कि modern man has the tendency of being up and doing without any concern about the consequences of the thought and action, कि उसको सब कुछ अपने कार्यशील प्रवृत्ति के रूप में everything he should have to do। तो जो ये हमारी पोइम है इसके हमने एक 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 समरी के बारे में हम लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि जो ये पोइम है इसके अंदर अडिगा हैं वो हिंसक मानव स्वभाव को, जो मैन का जो वायलेंट नेचर है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो मैन की डिस्ट्रक्टिव एक्शंस हैं उनको टू डू करने के लिए प्रमोट करते हैं अडिगा। द पोइट ऑल्सो वांट मैन
that he is man and he should do like manly actions, और वो एहसास कराता है कि आप पुरुष हो और पुरुषत्व के अकॉर्डिंग आपको यू हैव टू डू द थिंग्स। इसके साथ साथ वो थ्रेटनिंग भी करता है कि मैन इज लाइफ थ्रेटनिंग वाइल नेचर इज द लाइफ गिविंग। बोलता है कि मनुष्य की तो जो प्रवृत्ति है वो डिस्ट्रक्टिवनेस की है, और नेचर जो है वो प्रवृत्ति जो नेचर की या प्रकृति जो है वो जीवनदायिनी है। सो अकॉर्डिंग टू द पोइट द टू ओपिनियंस ऑफ मैन आर हियर ओनली टू डू और डाई, सिंस देयर इज नो थर्ड ऑप्शन फॉर हिम। तो कवि बहुत क्लियर इन बातों को भी यहाँ इस पोइम के अंदर आपको इंडिकेट करेगा। इसके साथ साथ वो ये भी बात बोलते हैं कि हमें जो वायलेंट एक्टिविटीज़ करनी है वो करते ही जाना चाहिए, क्योंकि पोइट इंसाइट्स मैन टू डू समथिंग वायलेंट एक्शंस टू क्रश द निप और टू पुल डाउन, टू ब्रेक, burn whatever is conveniently available. He may burn the grass, just Lord Hanuman burned Lanka. Likewise, we have to do some all these things to destroy. We have nothing to be maintained. Whatever is easily available, we have to do something destructive acts. The poet also advises to catch and hold the teeny butterflies, parrots, sparrows, and then pluck their wings, put out their furs and feathers. He says that jasmine flowers, bananas grows in the garden to be crushed under the wild elephant feet. Hence, man should destroy them by trampling on them. He also said that the poet also says that, or he says that the poet exhorts man to indulge in all kind of destructive activities. Man is violent and life-threatening by nature. The poet urges him to do something. Man has to restless desire to pull out or pull through the master switch with the masculine finger. बहुत क्लियर बोलते हैं। एडी कपूर उसको सभी प्रकार के विनाशकारी कार्यों में लिप्त होने के लिए प्रेरित करता है। दो क्लियरली ये समझना होगा कि एक आयरनी है, बहुत बड़ा एक उपहास है जो कि आज का जो मानव की जो लाइफ है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग जो टेंडेंसी है उसके ऊपर उन्होंने बहुत सटीक एक अटैक किया है। इसके अलावा अगर आपने पढ़ा हो तो जहाँ पर मनुष्य की केवल इंस्टिंक्ट, लस्ट, डिज़ायर्स हैं उनके ऊपर बहुत सटीक किया है, प्रहार करने की कोशिश की, और ये कहा है कि यस हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमको जितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना चाहिए, चाहे वो अर्थ का हो, चाहे मैन का हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उन सब का हमको जितना जल्दी हो सके उन सबको हमको मतलब उन सब का हमको यूटिलाइज कर लेना चाहिए। द पोइट ऑल्सो सेज दैट कि हमको जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको ठीक उसी तरीके से यूज़ करना है। लाइक एक गोल्डन एग लेइंग गूज जो होती है उसको इसलिए किल कर दिया जाता है बिकॉज वो एक दिन के अंदर सारे सोने के अंडे नहीं देती है, बिकॉज इट गिव्स डे बाय डे, एंड हु वेट फॉर दैट वन, उसका इतना प्रतीक्षा कौन करेगा, इसलिए उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से अडिग इस बात को आस करते हैं कि ये जो डिजास्टर्स की जो फास्ट स्पीड है उसके लिए वो बात करते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वी शुड हाउ टू डू और डाई, वी हैव नो थर्ड ऑप्शन। वो और भी बात बोलते हैं कि जो रिसोर्सेस हैं जिसमें बात बोलते हैं, पोइट बोलते हैं कि द मैन शुड कट द फॉरेस्ट एंड रिड्यूस द ट्रीज स्टैम्प एंड बर्निंग एंड बंटिंग इट। आफ्टर ऑल ही हैज़ ऑल द इम्पेलिमेंट्स, उसके पास सब कुछ है, लाइक एक्स है, सिकल है सो द नाइफ है, ही कैन डू ऑल विद हिज स्वीपिंग मूवमेंट्स ऑफ हिज हैंड, उसके पास सब कुछ है, वो उस सबको ख़त्म कर सकता है। अब पोइट इस बात के लिए और क्लियरली बोलता है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स उसके वे में आती है, जिनकी बात करता है कि चाहे मनुष्य के रास्ते में आने की वजह जैसे कोहरा, कुहासा, पर्वत, इनकी बात करता है, लाइक मिस्ट, फॉग, माउंटेन, पीक्स, हिडन डेंजर्स फ्रॉम साइरेंस, ही इज नॉट टू बी disheartened by the all these impediments. After all, he has horse sense, क्योंकि दिमाग तो है नहीं उसके अंदर। That is a practical knowledge, good judgment about the ordinary life. He
has to bring all about the restrictions in spite of the implements impediments कि वो बोलता है कि क्योंकि इस इन सारी बातों से वो मतलब उसके अंदर इस व्यवहारिक ज्ञान तो है नहीं, साधारण जीवन की निर्णय लेने की क्षमता है नहीं, तो उसको बस ये है कि ये सारा विनाश के रास्ते जितनी बाधाएं आए उनके बावजूद भी उसको कार्य करते रहना चाहिए, कि उनको रुकना नहीं चाहिए. एंड फाइनली पोइट आस्क्स टू एक्सप्लिसिट द मदर अर्थ एंड मैक्सिममली ही सेज कि वाट एवर जो रिसोर्सेज धरती माता के अवेलेबल हैं अंदर हैं उन सबको उसको यूटिलाइज करना. आल्दो सी इज एग्जिस्टेड येट स्टिल it has the fleshes on its bone and marrow inside the bone. He has to extract as much as possible from the mother earth to satisfy his hunger. कवि जो है अडिगा जी जो हैं वो बात बोलते हैं कि पुरुष को धरती माता का अधिक से अधिक शोषण करने के लिए वो बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि या दो मदर अर्थ जो है वो थक गई है, फिर भी उसकी हड्डी में जो मांस बचा है, हड्डी के अंदर जो मज्जा बचा है, उस सब का उसको जितना ज़्यादा संभव हो तुरंत उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए उसको खींच लेना चाहिए. यानी कि बहुत क्लियर बोलते हैं कि आगे भी बात बोलते हैं कि अगर हमारे पास जो जीवन रूपी जो कुआं है, लाइफ वेल है, उसको एक साथ एक झटके में उसको खाली कर देना चाहिए, उसको सुखा देना चाहिए. बिकॉज क्योंकि हमारा जो नेचर है वो तो है कि विक्ट्री इज़ वन, और हमें जीवन में पुरुषत्व को प्रदान करने के लिए हमें तो ये सब कुछ करना ही है, आगे बढ़ते रहना है. और इसका एक ही तरीका हो सकता है उसके लिए है कि जो मनुष्य डल है, मतलब जो काम करता नहीं है वो बेकार है, वो बोझ. अकॉर्डिंग द पोइट द आइडल मैन आर बर्डन ऑन द लैंड, ही वांट्स मैन टू डू समथिंग टू लाइटन द बर्डन ऑन द मदर अर्थ. फॉर दिस he has to be up and doing, he has to do something about it. He says that all these rights आर नेचुरल एंड नेसेसरी. वो बोलता है कि जो कुछ पृथ्वी पर जो निष्क्रिय है वो भार है, जो इसलिए मनुष्य को काम करते रहना चाहिए और उसको कार्यशील होना चाहिए और नियमित कुछ करते रहना ही चाहिए. सब सही है, प्रकृति की यही आवश्यकता है. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक वी हैव डिस्कस अ लॉट अबाउट डू समथिंग ब्रदर, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल study the text line to line. Till then, bye bye.